आइए, तो आज से जो अपने को नया चैप्टर शुरू करना है दैट इज केमिस्ट्री, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक, केमिस्ट्री दैट मीन्स साइंस ऑफ atoms and molecules, science of compounds, elements, mixtures, science of chemical reactions। ठीक है, एंड इसमें हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया था स्टैंडर्ड 8th से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देन यस मैम। केमिस्ट्री का स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन से होता है, स्टैंडर्ड 8th से। इसके बाद हमने 8th स्टैंडर्ड में ही इस पूरे वर्ल्ड में जो मटेरियल मिलता है, जो मैटर मिलता है, उसको हमने सीखा कि द मैटर कुड बी आइदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। देन इट कुड बी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। दूसरी चीज, मैटर कुड बी फाउंड इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये भी हमने देखा। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते समय हमने ये देखा कि एटम स्फेरिकल बॉल जैसा कंसीडर हुआ है, उसके सेंटर में छोटे से न्यूक्लियस में उसका पूरा का पूरा मास कंसीडर हुआ है, एंड दिस मास इज बिकॉज ऑफ इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, neutrons are neutral particles, and outside the nucleus the remaining part of the atom is for electrons, negatively charged particles, and these negatively charged particles move around the nucleus, as nucleus contain positive charge because of proton, and electrons being negatively charged particle, they are attracted and they revolve around the nucleus. In last class what we have seen, atomic structure tells us that the electrons revolve around in fixed path which are called as orbits. Then shells or orbits. The last shell contains the number of electrons, different number of electrons, and the electrons in the last shell are called as valency electron. This too we have learned in our last class, standard 8th and 9th. These electrons which are found in the last orbit, these electrons participate in chemical reactions, as the fullest capacity, the stable capacity of the last orbit is 8 electrons, each and every orbit except first. Except first orbit, all the orbits, if they are filled with 8 electrons, they will be stable. That means the octet state. Remember? So to gain the octet state, the atoms either give electrons or take electrons, or they share the electrons to get the stable state of 8 electrons in their last orbit. And to get this state, while giving or taking the electrons or the sharing of electrons, the atoms of elements combine with same type of elements or other type of elements. Done? So this combination of atom forms molecules, molecules of the same element and molecules of the compound as well. Okay? Compound means matter in which 2 different elements are combined in fixed ratio is called compound, molecule of compound. Okay? Okay. So this we have recalled. So
the structure of atom, ठीक है, the valencies of the atoms and the molecule of atom and molecule of compound. This should be clear to you before starting this lesson. Now, as the name of the lesson is periodic classification of elements. मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Okay, maybe instability है, connectivity में problem होगा बीच में. So, periodic classification of elements में अपने को ये देखना है कि कितने टाइप के एलिमेंट्स इस अर्थ पर मिलते हैं, एंड आपको बताऊं मैं कि देयर आर मोर देन 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. उनमें से 108 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो रियल में अर्थ में मिलते हैं हमको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, एंड कुछ एक 10 एलिमेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिले हुए हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में फॉर्म हुए हैं. सो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, एंड इन एलिमेंट्स की स्टडी करना, 118 एलिमेंट्स की स्टडी करना इज नॉट इजी थिंग, एंड देयरफॉर classification is needed. ठीक, classification means, need not to tell this, classification means distribution of elements into different groups and categories to study them properly. ठीक है ना, systematic grouping is classification. We have to see this periodic classification. Now periodic means the periodic change. Periodic means periodic change. yes, periodic change means ऐसा change जो एक fixed time interval पर repeat होता है. Getting? मैम रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल में। Yes, repeat after certain time, after certain interval. So this classification is periodic here. Take this we have to study. So elements and their classification. Different scientists have done this work. So we have to see their different postulates of classification, different theories of classification. And this we have to see Newland's law of octave, then Dobrnier's triad, then Mendeleev's periodic table, and finally modern periodic table. Okay. Now classification of elements एक्चुअली तब से शुरू हुआ जब लगभग 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. ठीक, अराउंड द ईयर 1800 में साइंटिस्ट लोगों ने जब लगभग 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तब से ये काम शुरू कर दिया था. उसके बाद जैसे जैसे टाइम जाता गया ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए एंड ये काम शुरू होता गया. ठीक है, तो हमको इनिशियल क्लासिफिकेशन भी देखना है, क्योंकि जब जैसे जैसे साइंटिस्ट लोगों के पास चीजें आती गई उन्होंने प्रूव करते गए, वैसा वैसा ग्रुपिंग करके क्लासिफिकेशन करते गए. तो इनिशियल स्टेज में जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें सबसे पहला सीधा सीधा तो ये दिमाग में आया कि एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दे कुड बी आइदर मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस, है ना. Very clearly we have learned the properties of metals and non-metals, chemical as well as physical properties. Okay. Later on, another scientist have discovered one more type of element, which was called as metalloid. So this was noticed. So now the overall all 118 elements were divided into metals, non-metals, and metalloids. Okay. Then साइंटिस्ट लोगों ने उसकी जब प्रॉपर्टी स्टडी करना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ एक पीरियोडिसिटी शो करती है. उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज हैं प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो इसके हिसाब से 1817 में जर्मन साइंटिस्ट डोबरनियर ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बेसिक शुरुआत किया.
उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस. व्हाट? ठीक, their properties of elements are related to their atomic masses, and he made the groups of 3 elements each having the same chemical properties, and he named that group as triad. Triad means group of 3 elements. So he arranged the 3 elements in a triad increasing order of atomic masses and showed that atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 elements. Triad में 3 elements लिए उसने, ठीक है. Let's see this table and यहाँ से मैं आपको इस चीज को explain करूँ. डोबर्नियर ट्रायड क्या चीज उसने बताया. उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है. एंड उसने ये प्रूव किया कि सपोज पहला ग्रुप उसने 3 एलिमेंट्स का लिया. फर्स्ट ट्रायड जो लिया, आई एम मार्किंग हियर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है. एलिमेंट 1 इज लिथियम, एटॉमिक मास 6.9. थर्ड एलिमेंट पोटेशियम, third one, lithium is first, middle one is sodium, and third one is potassium. Third, potassium atomic mass is 39.1. What, according to Dobernier's triad principle, he said that the atomic mass of the middle number is approximately the mean of these 2 elements. That means see, एलिमेंट 2 का बीच में दिया हुआ है कैलकुलेशन. सोडियम जो मिडिल नंबर है, इसका एटॉमिक मास विल बी मीन ऑफ A plus C by 2. दैट मींस मीन. तो 6.9 plus 39.1 करें एंड डिवाइड बाय 2 करो तो 23 आता है. एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है, ठीक. तो उसने ये कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मासेस के कारण होती है. And according to atomic masses, if we arrange 3 elements in that way, the middle one will have atomic mass equal to the mean of other 2 elements. ठीक. डायग्राम नंबर 2.1 टेबल जो दिया है उसके अंदर 2 एग्जांपल्स और हैं. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम एंड बेरियम का एटॉमिक मासेस रिस्पेक्टिवली 40.1 एंड 137.3. इसका मीन निकालो तो 87.7 आता है, which is near about actual mass of strontium 87.6. ठीक है. Likewise, chlorine, bromine and iodine, in which chlorine 35.5, iodine 126.9, and mean of both is 81.2, which is nearly relate with 79.9 actual mass of bromine. ठीक. Okay, come to last point of this page. डोबर्नियर ट्रायड में अब आपको एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है कि 3 के ग्रुप दिए हैं, ठीक है. 3 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट ग्रुप है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम. इसमें आप मीन निकाल के देखो कि कैल्शियम का 40.1 के आसपास आता है क्या. एंड सेकेंड इज गिवन है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलिनियम. इसका मीन निकाल के देखो. तीसरा क्वेश्चन दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है. तो आप डोबर्नियर ट्रायड्स, इनमें रूल लागू होता है कि नहीं होता ये भी आप चेक करना, ठीक है. हु हैज ज्वाइंड जस्ट नाउ, कीप योर माइक म्यूट बेटा. रिदा फातिमा. तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. डोबर्नियर ट्रायड्स पेपर में 2 मार्क के क्वेश्चन पे आता है. डोबर्नियर ट्रायड क्या होता है, तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन. सॉरी, ठीक है. डेफिनेशन आपको देनी है इस पैराग्राफ में. यहाँ डेफिनेशन दी हुई मैं मार्क कराती हूँ आपको. आप मार्क करो डोबर्नियर ट्रायड्स में. हाँ, सी यहाँ से है ऊपर से 4th लाइन. The atomic mass of the middle element was approximately equal to mean of atomic masses of other 2 elements. And the 3 elements in a triad shows Dobernier triad.
दे आर कॉल्ड एज डोबर्नियर ट्रायड। आप किसी भी एक के एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो है ये डोबर्नियर के बाद, नाउ डोबर्नियर ने कुछ एक एलिमेंट्स के साथ ये प्रैक्टिकल करके देखा। 16 पेज के बाद 17 पेज की बात कर रही हूं मैं। तो डोबर्नियर ने 3 के ऐसे बहुत सारे ग्रुप सजेस्ट किए, लेकिन सारे ही एलिमेंट्स के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने फर्दर आगे और सोचना शुरू किया कि एलिमेंट्स की स्टडी के लिए क्या किया जाए। इसके बाद जो एक वैलिड आता है, जो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने किया, ठीक। उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक मासेस हैं उसको कुछ अलग तरह से रिलेट किया, कुछ अलग तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कवर की। उन्होंने क्या किया, उस समय तक के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, जितने नोन एलिमेंट्स थे, उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। एंड लाइटेस्ट एलिमेंट को सबसे पहले रखा एंड जो हैवी एलिमेंट है उसको लास्ट में रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि हर एर्थ एलिमेंट जो है, every eighth element had the properties similar to the first element। यानी 7 के ग्रुप बनाए। जो एर्थ एलिमेंट आया एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने में, वो जो एर्थ एलिमेंट उसने देखा कि हर बार एर्थ एलिमेंट अपने ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज बताता है, ठीक। जैसे हमारे इंडियन म्यूजिक सिस्टम में हम 7 सुर लेते हैं, 7 मेन नोट्स होते हैं ना, सा रे गा म प ध नी। फिर से आपको सुर निकालना हो तो 8th वन विल बी अगेन सा, है ना। तो जैसे इन 7 सुरों को ऑक्टेव कहते हैं, इंग्लिश के 7 सुर जो होते हैं, दो रे मी फा सोला ती, तो इनको ऑक्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूलैंड का ये नियम भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाया। जैसे हिंदी में, हमारे हिंदी में म्यूजिक में हम उनको सप्तक कहते हैं, 7 सुरों का जो समूह है वो सप्तक कहलाता है। तो जो 8वां सुर है वापस से सा आ जाता है ना। एंड वेस्टर्न म्यूजिक में इसको जो डो आता है वो वापस से डबल रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने इस तरह से लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा एंड व्हाट ही सेड कि इस तरह से अरेंज करते समय, ठीक है, हम हाइड्रोजन लाइटेस्ट एनिमल से लेकर शुरू करें तो 8 एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद जो सोडियम है, ठीक है, 8th एलिमेंट आता है, तो सोडियम अरेंज करते टाइम वापस से वो 8th एलिमेंट लिथियम के नीचे आता है। एंड सोडियम एंड लिथियम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। लाइकवाइज बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है 8th नंबर का एलिमेंट, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में प्रॉपर्टी सिमिलर है। एंड इसीलिए इन्हीं सिमिलर प्रॉपर्टीज को जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने अपने इस लॉ का नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स के लिए ये सच भी प्रूव हुआ। टेबल नंबर 2.2 शो करता है ना। सी सारे गामा पधा नी सा, ठीक, धानी एंड सा करे तो फिर से पहला आ जाता है। लाइकवाइज हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वापस से जब इसमें फ्लोरीन लिया, हाइड्रोजन के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज आई, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आया, उसकी सेम प्रॉपर्टीज आई, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। इस तरह से इन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज सिमिलर आई। लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स को छोड़कर जो न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ था, ये न्यूलैंड ऑक्टेव प्रूव नहीं हुआ, उसके कुछ एक लिमिटेशंस आए, ठीक है। तो ये अप टू कैल्शियम तक, यानी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 20 तक प्रॉपर्टीज ये सेम देखने को मिली, लेकिन उससे हायर एलिमेंट्स जब देखने गए तब उनमें ये प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हुई। तो न्यूलैंड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों लोअर एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, लोअर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स थे,
लोअर एटॉमिक मासेस के जो एलिमेंट्स थे उनमें तो ये प्रॉपर्टी आ रही थी, ऑक्टेव प्रॉपर्टी फ्लो फॉलो हो रही थी, लेकिन हायर एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर नहीं आई थी। ठीक है, तो इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे न्यूलैंड ने कोबाल्ट एंड निकल को 2 के साथ रखा हैलोजन के साथ। यहाँ पर देखो डायग्राम नंबर 2.2। तो कोबाल्ट निकल जो है ये सारे गामा के हिसाब से तो कैल्शियम फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये जो 3 एलिमेंट्स है ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेयरएज कोबाल्ट एंड निकल जो है ये मेटल्स है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर कार्बन सिलिकॉन के साथ टाइटेनियम रख दिया है ना, तो वैसे ही कार्बन सिलिकॉन के साथ टाइटेनियम के प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है ना। एंड इसमें बाद में जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके लिए इसमें कोई भी जगह नहीं थी। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ जो था ये भी बहुत अच्छे से सारे ही एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को एंड सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुआ। फर्दर साइंटिस्ट का काम इस पर चलता ही रहा एंड 1869 से लेकर 1872 तक, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे डिमित्री मेंडलीव, उन्होंने इसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए, न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई थी ऑक्टेव की, है ना, एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स प्लेसिंग के बाद जो एलिमेंट नया उसमें सेट होता है वो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने सारे ही एलिमेंट्स, जब तक उसके पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, उन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबल में अरेंज किया and he arranged all the elements according to their atomic masses. छोटे एटॉमिक मास से लेकर बड़े एटॉमिक मास के नंबर्स के एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबल में अरेंज किया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तब तक के नोन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया एंड देन उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेट करके उसकी प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, नाउ मेंडलीव organized periodic table on the basis of chemical and physical properties of the elements. These were molecular formula of hydrides and oxides of elements, melting points, boiling points and densities of the elements and their hydrides and oxides. ये चीजें उसने स्टडी करके उनको अरेंज किया। ठीक, so on the basis of this finding Mendeleev stated the following periodic law. ये पेपर में पूछा जाता है, आप इसको मार्क करके रखो। Properties of elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है, Properties of elements are periodic function of their atomic masses. यानी एटॉमिक मासेस से आप अरेंज करो तो उनके अंदर ग्रुप में एक के नीचे एक आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। देन सो उसने टेबल बनाया, तब जो टेबल है उस टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आएंगी एंड वर्टिकल लाइंस भी आएंगी। तो इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स बनेंगे। अब आपको यहाँ से नई टर्मिनोलॉजी सीखनी है। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स थे, आड़ी लाइंस के जो ग्रुप्स थे, उनको उन्होंने नाम दिया पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी उसको क्या नाम दिया, पीरियड्स दिया, एंड वर्टिकल लाइंस जो थी उसको नाम दिया ग्रुप्स। ठीक है, सो सी नेक्स्ट टेबल, टेबल नंबर 2.3। ठीक है, सी टेबल नंबर 2.3, इसमें सीरियली 1 2 3 4 नीचे की तरफ गए तो पीरियड्स हैं ये, दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। एंड जो हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रुप्स बने हैं वो कहलाते हैं ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उन्होंने इन ग्रुप्स को, इन एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं एंड 12 पीरियड्स हैं। देयर आर 12 पीरियड्स
एंड एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, see this on your screen, Mendeleev periodic table given on page number 18. तो उन्होंने ये कहा मेंडलीफ ने कि जो ग्रुप है, सपोज ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, इस ग्रुप नंबर 1 में उस एलिमेंट के जितने भी उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है, लाइक हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में लिथियम, थर्ड में सोडियम एंड लाइकवाइज पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, इस तरह से ये जो एलिमेंट्स है, इन सारे ही एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला R2O होगा, मींस R2O होगा। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला RO, एंड ये हमने 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से देखा था, इनकी वैलेंसीज के कारण ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, वो अपने को नहीं देखना है, अपने को ये देखना है कि जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड चालू होता है लिथियम से एंड लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ो तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है ना, तो इस तरह से इन सारे ही एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, एंड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कई सालों तक वैलिड भी माना गया, क्योंकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी थी, दैट मींस मेरिट्स भी थे, अच्छी बातें भी थी, एंड कुछ एक बातें मैम आपकी